वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. And back with the new topic related section. So I must say this section structure has been explained before, and the beginning introduction of the story has also been explained in my previous video. Go and search for it, in which era it was published, and the second sequence when it was published. And 1943 was the first year of his publication of this publication, and the second 1947, and the name is also described here. First name is also described there. The name was same, but the short stories title was different. Okay, the writer is R.K. Narayan. Autobiographical description have been explained in my previous video. Go and search it out and hear it properly and listen it. As much as you will listen it, and it will fix in your mind. Try to write unambiguously. Okay, try to write it one more than one time in at your home. Then it will be easy to write on the answer sheet. And this is images 7 images yeah, images 7. Okay, images 7. I'm sorry, I'm stucking. Images 7. I have chosen this to explain before. If you want any other booklets related to the literature, English literature, then I can upload it. And tell me the section, tell me the name of the booklet, and I can upload it. Not only the English literature, but you can ask me about any English literature's book, that is for the IAS student, for the graduation students, especially from the Patna University's book. So I can provide it. Okay, poetry, the poetry will be also there, and prose writing will be also there. Any other writer, you if you want me to upload, I can upload, I will upload. Come to comment section and tell me. So let's start. As you all can see, our today's topic is 2.3.2, which is atmosphere of the astrologer's day, and the structure have been explained before. Okay, so the writer is R.K. Narayan. Narayan has an eye for detail, any significant detail. नारायण ने हमेशा अपनी आंखें किस पे रखी? तफसील पर. कोई भी अहम तफसील, इम्पॉर्टेंट तफसील, बट खुलासा, ठीक है, जिसे हिंदी में खुलासा कह सकते हैं, वाज़े कह सकते हैं, डिटेल कह सकते हैं इंग्लिश में. ठीक है, नारायण ने हमेशा अपनी आंखें खुली रखी, या अपनी आंखें उन चीज़ों पे रखी, अपना इंटेंशन उन चीज़ों पे रखा, अपना ध्यान खासकर उन चीज़ों पे रखा जो तफसीली हो. तफसील पे ज़्यादा उन्होंने तफसील बताने में ज़्यादा नज़र रखी है किसी भी चीज़ की. आगे पढ़ेंगे हम तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी. ठीक है, विथ इज कीन ऑब्जर्वेशन एंड टैलेंट फॉर द पर्टिकुलर. ठीक है, कीन उनकी गहरी जो ऑब्जर्वेशन थी, उनकी समझने की जो सलाहियत थी, उन्होंने हमेशा क्या किया कि अपनी गहरी बहुत ही गहरी तरीके से सोची समझी तरीके से ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को, ख़ासकर टैलेंट को, किसी भी चीज़ के टैलेंट को, किसी इंसान के टैलेंट को. ठीक है, उसको उन्होंने एमिनेंटली लिखने की कोशिश की है. उन्होंने गहरे तरीके से ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को. एंड टैलेंट फॉर द पर्टिकुलर. ठीक है, टैलेंट फॉर द पर्टिकुलर. In between the giving explanation these lines, I am interrupting for saying this thing, that whenever you are going to write, try to write the eminent lines of the book. Okay, of the paragraph, like if there that is written here with the double inverted comma, talent for the particular, then write it and give references like Henry James. Okay, मैंने जो आपको अपलोड की थी वीडियो, प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड की थी ऑटोबायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में, कि R.K. नारायण के फर्स्ट पब्लिशर कौन थे, मैंने अभी तक दोबारा उसे पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मुझे याद है हैमिश हैमिल्टन वॉज हिज फर्स्ट पब्लिकेशर. ओके, सॉरी, पब्लिशर वॉज हिज फर्स्ट पब्लिशर. ओके, एंड उन्होंने पब्लिकेशन दी थी उनकी बुक को. ओके, और उनको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था उन्हें? आई एम फॉरगेटिंग, मैं अब इनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है, इस तरह की राइटिंग, इस तरह की लाइंस को याद रखना है, इस तरह की डिटेलिंग देनी है बाय यूजिंग another pen, another color of the pen. If you are writing with the blue pen, then change the color. If the examiner is permitting you to write with the black, then you will write with the black, giving by blocking the line with double inverted comma as it is written here. Okay, and so let's start. टैलेंट फॉर द पर्टिकुलर, ख़ास चीज़ों के टैलेंट को, ख़ास
के टैलेंट को, किसी भी ख़ास टैलेंट के को इन्होंने काफ़ी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ रखा है, ठीक है। टू यूज़ हेनरी जेम्स वर्ड्स, हेनरी जेम्स के वर्ड्स को यूज़ करते हुए, यानी कि आगे की जो बात है वो हेनरी जेम्स बोल रहे हैं, उन्होंने, हेनरी जेम्स ने कही है आर के नारायण के बारे में। ही क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ अ परफेक्ट वर्क प्लेस फॉर द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, एक माहौल बनाया है, तैयार किया है बहुत परफेक्ट काम की जगह बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजर के लिए, ठीक है। हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्टेड, उसकी जो पेशेवराना आलात हैं, जैसे डॉक्टर के पास उसकी अपनी चीज़ें होती हैं, सीज़र and different equipments are there, surgical equipments are there who which is used by doctors, okay, surgeons, तो डेंटिस्ट के पास अपनी होती हैं। तो यहाँ पे आगे हमें बताया जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर के पास क्या क्या था, ठीक है। हालांकि ऑल्दो ही वॉज नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, he has pretended himself that he is the astrologer, that's why he gathered all these things, ठीक है। his professional equipment consisted, उसकी प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी जो थी वो भी काफ़ी जमे हुए तरीके से उसके पास थी, ठीक है, जो उसे ये जाहिर करवा रही थी कि वो एक एस्ट्रोलॉजर है। देखिए ये लाइन भी यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आती है। डजन कावरी शेल, वो कावरी शेल कहते हैं मूंगे की जो छोटी छोटी सीप्स होते हैं, मूंगे होते हैं, उनके होल को शेल, उसे शेल ही कहा जाता है, मूंगे कहा जाता है, या उसे जो समंदर किनारे हमें अक्सर मिल जाती हैं और इस तरह के लोग अपने पास रखा करते हैं। डजन कावरी शेल्स, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, जो एक चौकोर सा कपड़े का टुकड़ा उसके पास था जिसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी, मिस्टिक, कुछ ऐसी जो समझ में ना, ऑब्सक्योर थी, जो समझ में नहीं आ रही थी। नोटबुक, एक नोटबुक थी उसके पास। एंड अ बंडल ऑफ पामायरा राइटिंग, ठीक है, पामायरा मतलब के ताड़ के दरख्त की कुछ बंडल थे उसके पास, ठीक है। इस तरह की ये लाइंस जो हैं आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इन लाइन को आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। इसे आप अपने वर्ड्स में चेंज नहीं कर सकते। एंड आई हैव टू राइट इट विथ दीज वर्ड्स, यू कैन नॉट ऐड योर ओन वर्ड। द बर्ब्स ऑफ द स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री, कुछ गुच्छे थे, इमली के कुछ गुच्छे थे जो बिखरे हुए थे, ठीक है। द सर्जिंग क्राउड मूविंग अप एंड डाउन द नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट, द सर्जिंग क्राउड मूविंग अप एंड डाउन द नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट, एक तलाश करती हुई भीड़ थी जो इधर उधर मूव कर रही थी और एक पतली सी सड़क थी, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक वो सड़क इसी तरह के लोगों के साथ हुआ करती थी, ठीक है। उस रोड पे इसी तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है लोग तलाश कर रहे हैं, ठीक है। द वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स, मेडिसिन सेलर्स, ओके, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, द वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स, बहुत सारे तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग जिनकी वैरायटी थी, ठीक है। मेडिसिन से दवाएं बेचने वाले भी थे। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चोरी की हुई चीज़ों को, हार्डवेयर की जो चीज़ें होती हैं, वो चोरी की हुई जो चीज़ें हैं वो उन्हें बेचने वाले भी थे। मैजिशियंस भी थे, जादूगर जिन्हें कहते हैं, मैजिशियंस भी थे। ऑक्शनियर्स ऑफ चीप क्लॉथ्स भी थे, जो चीप क्लॉथ क्या कहेंगे, पुराने कपड़ों को बेचने वाले भी थे, जो ऑक्शनियर थे, नीलाम कर रहे थे उन्हें, पुराने कपड़ों को बेचने वाले भी लोग थे, ठीक है। एंड वेंडर्स ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स, मूंगफली बेचने वाले वेंडर्स जो होते हैं, इधर उधर घूम करके बेच रहे होते हैं, इधर उधर जो हाथ में सरों पे रखे हुए होते हैं टोकरियाँ अपनी और चीज़ों को या ठेलों पे बेचने वाले। एंड वेंडर्स ऑफ फ्राइड ग्राउंड नट्स, भुनी हुई मूंगफलियाँ बेचने वाले भी थे। मैं ये वीडियो यहीं तक रखूँगी, मैंने आगे की लाइंस को आगे की नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना है। एज आई हैव टोल्ड इट बिफोर दैट आई विल distribute this paragraph into 2 videos sequentially, I will upload it and मुझे लगता है कि मैंने यहाँ तक अच्छे से एक्सप्लेन किया है। if someone is having any problem then come to comment section and ask me, I will explain it and I will give answer, okay। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।